بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح خیر، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریسو، میں ہوں ہنا عادل اور میں ہوں علی انیق سید۔ امید آپ خیر و عافیت سے ہوں گے جناب۔ نئے دن کا آغاز ہے، نئے ہفتے کا آغاز ہے، نئے شو کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور آپ کو بتائیں کہ چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں اور سکول کھل چکے ہیں، جس پر تفصیلاً آگے چل کر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے کراچی میں، اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ گل پلازا میں آتش زدگی ہوئی ہے جو کہ ہفتے کے روز ہوئی اور اس پر ابھی تک آگ بجھانے اور کولنگ ڈاؤن کا عمل جاری ہے۔ فائر فائٹر پلازے کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور مزید 4 لاشیں نکال لی گئی ہیں اور یوں اموات کی تعداد 10 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 30 افراد زخمی بھی ہیں۔ سرچ آپریشن کے دوران بچے سمیت 3 افراد کے اعضاء ملے ہیں۔ متعدد افراد اب بھی لاپتہ ہیں اور ان کی تلاش اب بھی جاری ہے۔ 1200 سے زائد دکانیں جل گئی ہیں۔ کراچی کے گل پلازا میں آتش زدگی پر 59 لاپتہ افراد کے لواحقین نے پولیس سے رابطہ کیا ہے اور ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کہتے ہیں لواحقین سے لاپتہ افراد کے موبائل نمبر حاصل کیے گئے ہیں اور اب تک 26 افراد کی لوکیشن گل پلازا کے پاس سے ملی ہے۔ اور پولیس جو کہہ رہی ہے کہ مزید جو موبائل نمبرز ہیں ان پر کام کرنے میں ہم مصروف ہیں۔ دوسری جانب گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی گل پلازا پر میڈیا سے گفتگو تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سیاست نہیں کرنی، ہمارے بھائی اندر پھنسے ہوئے ہیں، تمام متاثرین کو معاوضہ ملنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سے بات کروں گا، اس کے لیے دستخط بھی لکھوں گا، جس کا جو نقصان ہوا ہے وہ گورنر ہاؤس آئیں، تمام متاثرہ سیلز مین رجسٹریشن کروائیں، راشن دیں گے۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ سندھ کو آگ پر قابو پانے کے لیے مکمل تعاون کی پیشکش، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے گل پلازا سانے پر افسوس کا اظہار کیا اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دکھ اور مصیبت کی اس گھڑی میں متاثرین اور سندھ حکومت کے ساتھ یہ ساری صورتحال ہے جی، اس پر ہم نے کرنی ہے بات۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہمارے نمائندے، موقع پر موجود ہیں یاسین جبل پوری، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کریں گی سعدیہ جاوید صاحبہ، ترجمان سندھ حکومت ہے۔ سب سے پہلے ہم یاسین جبل پوری کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم یاسین، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ افسوسناک واقعہ جو پیش آیا اس کے بعد اب کی کیا سچویشن ہے، آن گراؤنڈ کیا سچویشن چل رہی ہے، ذرا ہمیں اپڈیٹ کریں۔ دیکھیں، جب سے آگ لگی ہے اس وقت سے فائر بریگیڈ کا عملہ جو ہے مسلسل جو ہے وہ آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ اب فائر آفیسر کا کہنا ہے کہ 80 سے 90% ہم نے جو ہے وہ آگ پر قابو پا لیا ہے، آگ کے اوپر جو ہے وہ قابو پا لیا ہے۔ فائر آفیسر ظفر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ جو آگ کے کب سے لگے ہوئے ہیں اور کتنا قابو پایا یہ بتائیں گے۔ جی ظفر صاحب بتائیے گا۔ جی، سیٹرڈے کو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ آگ جو ہے وہ تقریباً 10 بجے 10:30 بجے کے درمیان لگی ہے اور اس پہ فائر بریگیڈ فوری طور پر یہاں پہنچی ہے اور مزید آگ پھیلنے اور بڑھ جانے کی وجہ سے پھر شہر بھر کی فائر ٹینڈرس منگا لی گئی تھیں۔ اور چونکہ اس مال کے اندر بہت ساری دکانیں ہیں اور را مٹیریل بھی مختلف قسم کا ہے تو آگ بہت تیزی سے پھیلی ہے اور پھر عمارت بھی بہت جلدی مخدوش ہونا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ فائر فائٹنگ اندر زیادہ دیر تک نہیں کر سکے اور پھر باہر سے فائر فائٹنگ کرنا پڑی ہمیں۔ اس وقت جو ہے وہ آگ تقریباً جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ 80% جو ہے وہ فلیم موجود نہیں ہے اور کولنگ کا عمل چل رہا ہے۔ ہم نے پوری رات جو ہے وہ 15 فائر ٹینڈر KMC کی، 2 واٹر باز اور 30 نارکل اور دیگر ادارے 112 نیوی KPT اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کے ہم نے فائر فائٹنگ کی۔ الحمدللہ اس میں کافی حد تک جو ہے وہ فلیم اب کم ہو گیا اور دھواں بھی بہت کم ہو گیا ہے اور اسموک اور ہیٹ بھی کم ہوئی ہے۔ اور کل ہم نے اسی بنیاد پہ جو ہے وہ عمارت مخدوش ہونے کے باوجود بھی، خطرناک ہونے کے باوجود بھی ہم نے سرچنگ کا عمل شروع کیا اور کل فرسٹ فلور پہ کوریڈور سے ہم نے کچھ ڈیڈ باڈیز بھی رات کو ریکور کری ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ عمارت میں مکمل طور پہ جو ہے کب اندر داخل ہوں گے جو اور ریسکیو کا کام شروع کیا جا سکے گا؟ دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ عمارت تو جو ہے وہ ڈینجرس ہو چکی ہے، خطرناک ہو چکی ہے، تو اس لیے اس میں جو ہے وہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جی تمام فائر فائٹر اندر چلے جائیں اور اندر جا کے فائر فائٹنگ کریں اور سرچنگ کریں، تو یہ ممکن نہیں ہے، جس کی وجہ سے باہر سے فائر فائٹنگ ہو رہی ہے۔ اور سرچنگ کا عمل بھی جو ہے اس جگہ پہ ہم جا کے سرچنگ کر رہے ہیں جہاں پہ نشاندہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ لوگ ہیں یا کنفرمیشن ہوتی ہے، تو پھر ہم رسک لے کر اس میں جو ہے وہ کچھ منٹس کا، کچھ گھنٹوں کا ہم جو ہے وہ آپریشن کر کے اپنی باڈیز کو جا کے ریکور کر رہے ہیں۔ فائر آفیسر کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی جان جو ہے وہ جوخم میں ڈال کر جو ہے وہ جس جگہ پہ لوکیٹ ہوتا ہے وہاں پر جا کے سرچنگ کرتے ہیں، وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے۔ مکمل طور پہ ہم وہاں پہ نہیں جا سکتے جب تک جو ہے وہ کوئی ہمارے کو اس طرح کے ایکوپمنٹ نہیں ملنے کی مشکلات جو ہے وہ سب سے زیادہ آلات کی ہے، آلات کی کمی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں جانے میں کام میں مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ DIG ساؤتھ اسد رضا کا کہنا ہے کہ جاں باغ افراد کی تعداد جو ہے 14 ہو گئی ہے، جس میں ایک خاتون بھی شامل ہیں، جبکہ جو ہے وہ
30 افراد زخمی ہیں جو اسپتال میں زیر علاج ہیں، جس میں سے 14 کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے. ڈاکٹر جن کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ عمارت جو ہے وہ ابھی بھی 80% جو ہے وہ آگ پہ قابو پایا جا سکا ہے. 20% ابھی باقی ہے. کہیں کہیں پر جو ہے شعلہ موجود ہے. تو یہ بتائیے کیا وجہ بتائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ابھی تک آگ پر مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکا، اور زخمیوں کو کس اسپتال لے جایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، زخمیوں کو سول اسپتال کے بنس وارڈ میں منتقل کیا گیا ہے، جہاں ان کو وہ زیر علاج ہیں. جبکہ آگ پہ جو قابو نہیں پایا جا سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ عمارت میں جو ہے چھوٹی چھوٹی دکانیں موجود ہیں، جو 1200 دکانیں ہیں، اور اس میں ایگزٹ کا کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا گیا تھا جہاں سے جو ہے وہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے جہاں سے فوری طور پہ نکل سکے. چھت پہ جانے کا راستہ بند ہو چکا تھا. جو ایگزٹ کا ڈور تھا اس جگہ کو بند کر کے اور ادھر جو ہے وہ سائن بورڈ لگا دیا گیا تھا اور وہ جگہ فروغ کر دی گئی تھی. اس میں جو عمارت کے جو انتظامیہ ہے اس کا قصور بھی ہے کہ انہوں نے اس جگہ پہ کوئی ایسی جگہ چھوڑی نہیں تھی جہاں سے جو ہے لوگ باہر نکل سکیں. اسی دوران جو ہے جب سیڑھیاں لگا کے جو ہے اتارنے کی کوشش کی گئی تو لوگ جو ہے وہ سیڑھی ٹوٹ گئی. آگ کی تپش کے وجہ سے جو ہے وہ سیڑھی ٹوٹ گئی اور لوگ جو ہے بلندی سے نیچے بھی گرے ہیں. جی ٹھیک ہے، بالکل آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. یاسین، سعدیہ جاوید صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. سعدیہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بڑا افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا ہے، اور جو مین ریزن بتائی جا رہی ہے ابھی تک لوگوں کے پھنسے ہونے کی وہ یہی ہے کہ کوئی ایمرجنسی ایگزٹ نہیں تھا. اور اس حوالے سے یہ بھی تحقیقات میں چیزیں سامنے آئی ہیں کچھ کہ 265 ایسی عمارتیں ہیں کراچی میں جن کے پاس فائر ڈپارٹمنٹ کا NOC نہیں ہے. تو یہ تو سراسر غفلت ہے جس کے باعث اتنا بڑا نقصان ہوا. کون ہے ذمہ دار اس نقصان کا؟ سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے توسط سے جن کا اس حادثے میں جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں ان کے خاندانوں سے تعزیت، اور جو اس وقت زیر علاج ہیں سندھ حکومت مکمل طور پر ان لوگوں کے ساتھ ہے اور ان کے علاج معالجے میں معاونت کر رہی ہے. دیکھیں، کل پرسوں جب یہ رات کو حادثہ پیش آیا ہے، یہ کوئی 50 سال پرانی عمارت ہے اور اس میں ایگزٹ اور فائر فائٹنگ کا جس طرح انتظام ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اسی لیے کل CM صاحب نے جب وزٹ کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی فائر فائٹنگ کا آڈٹ کرایا جائے. یہ کراچی کی پرانی عمارتیں ہیں، اس میں اس وقت جب تعمیرات کی گئیں تو اس میں ایمرجنسی ایگزٹ اور فائر فائٹنگ کے نظام کو اس طرح نہیں فعال کیا گیا جس طرح اب نئی عمارتوں میں ہے. آڈٹ جب کراتے ہیں تو تاجر برادری جو ہے وہ سراپا احتجاج بنتی ہے. دیکھیں، بالکل حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن جو بلڈنگ پرائیویٹ اونرز کے کنٹرول میں ہے ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. کل CM صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جس کی بھی ہے، جو سرکاری ادارے جن کی بھی ذمہ داری تھی، اگر ان کی طرف سے غفلت برتی گئی ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. آج وہ اسی سلسلے میں CM ہاؤس میں اب سے تھوڑی دیر میں اجلاس کریں گے اور اس معاملے کو وہ خود دیکھ رہے ہیں. اور جیسے آپ کے رپورٹر نے رپورٹ کیا، مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کبھی کراچی آئے ہیں اور گل پلازا گئے ہیں. میں کراچی میں رہتی ہوں. گل پلازا ایک طرح سے جیسے ایک کنواں ہوتا ہے اس طرح تھا، کیونکہ سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ مال میں کنورٹ کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے نہ وینٹیلیشن کا کوئی نظام تھا اس میں، اور ایگزٹ نام کی تو کوئی چیز رہ نہیں گئی تھی. ایک دروازہ تھا جس سے آپ داخل ہوتے تھے اور دوسرا دروازہ تھا جس سے آپ نکلتے تھے. تو اسی وجہ سے لوگوں کو وہاں جو لوگ اندر تھے وہ پھنس گئے. اور دوسرا وہ جو ہے آگ اتنی تیزی سے پھیلی ہے کہ جس کو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اس کا مطلب اندر کوئی نہ کوئی ایسا کیمیکل
प्लास्टिक का मटेरियल, रॉ मटेरियल वहां मौजूद था, जिसकी वजह से आग पे काबू पाने में 24 घंटे लगे। अच्छा सादिया साहिबा, मैं तकरीबन 10 साल वहाँ रहा हूँ कराची में, और गुल प्लाज़ा हम जानते हैं कि काफ़ी मकबूल प्लाज़ा है और वहाँ पर अक्सर लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। और आपने भी कहा कि ये 50 साल से बिल्डिंग कायम थी, तो आपको नहीं लगता हुकूमत की कुछ जिम्मेदारी बनती है इस हवाले से कि जब चेकिंग की जाती है, जैसा 2023 में भी KMC का एक ऑडिट हुआ था और उसमें भी अंदाज़ा लगाया गया था कि बिल्डिंग्स की क्या हालत है और खस्ता हाली का शिकार है, तो इस हवाले से आपको एक्शन कुछ जल्द वाकई का इंतजार क्यों किया जाता है, एक्शन पहले क्यों नहीं लिया जाता? देखिए, बहुत सारी बिल्डिंग्स जो जिनमें फायर एग्जिट नहीं है, आप जैसे खुद बता रहे हैं, एक दोबारा से कराची की बिल्डिंग्स का ऑर्डर हुआ 2025 में, क्योंकि 2025 में कराची में कई जगह छोटी बड़ी आतिशज़दगी हुई और वो ऑडिट जो है वो मुकम्मल हुआ। कुछ जगह लेटर्स, वार्निंग्स उन ताजिर बरादरी से, रिहायशियों से हुकूमत ने मीटिंग की, लेकिन आपको पता है कि लोग जो है इस चीज को सीरियस नहीं लेते। फायर के जो तरीकाकार है दुनिया में या पाकिस्तान में भी है, तो उस तरह उसको जो है वो राइज नहीं किया जाता। गवर्नमेंट ने कई जगह पर सख्ती की है, नोटिस सर्व हुए हैं, लोगों ने कंप्लाइंस नहीं किए हैं। इसीलिए मैंने आपसे ये कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कल ये खुद कहा है कि जिस भी सरकारी अफसर की गफलत होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। और अफसोसनाक वाकया है, लेकिन ये तमाम तर जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत पे, बिल्कुल ठीक है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन तमाम तर क्योंकि प्राइवेट ओनर्स हैं, उनका ये मानना है कि जी हम टैक्स अदा कर देते हैं तो इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, वो भी जिम्मेदार बनते हैं। गुल प्लाजा में आपके रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे हैं कि एग्जिट के रास्ते ही बंद थे। एक दुकान थी वो 4 दुकानों में कन्वर्ट कर दी गई थी। ओरिजिनली ये 400 दुकानों का मॉल था जो कराची में बना था। 1200 में कन्वर्ट इसी तरह हुआ कि इंटरनली मेरी दुकान थी, मैंने आपके साथ डील कर ली इंटरनली, कोई उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं, क्योंकि एक प्राइवेट ओनर इसको रन करता है। प्राइवेट गफलत जिसकी भी नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, आप दुरुस्त कह रही हैं। इस पर जरा जिम्मेदारान की तरफ भी हम आते हैं। आपकी इजाजत से जरा यासीन हमारे जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ चलते हैं। यासीन, जरा अब हम चाहेंगे कि अगर आप कैमरामैन से रिक्वेस्ट करें और हमें दिखाएं कि आपके अकब में अभी भी हम देख सकते हैं कि धुआं निकल रहा है बिल्डिंग से। कौन सा ये हिस्सा है बिल्डिंग का जहां से अभी भी धुआं निकल रहा है, और कितनी देर लगेगी कि जो इमारत के अंदर रेस्क्यूज चले जाएं और वहां से जाकर देखें कि अंदर की क्या सूरत हाल है, और ये जो आग किसी हिस्से में लगी हुई है इसको बुझाने में कितना टाइम दरकार होगा? देखिए, आज जो धुआं निकल रहा है वो तो आपके सामने मौजूद है। कैमरामैन दिखा रहे हैं कि इमारत से जो है वो धुआं निकल रहा है इस वक्त भी, और फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो इस नारकल पर मौजूद है और वो आग बुझाने के लिए जो है वो अपने तौर पे हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इमारत के तीनों तरफ से जो है वो पानी डाला जा रहा है। फायर ऑफिसर का भी यही कहना है कि ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे कहीं कहीं पर जो है शोले मौजूद हैं। सादिया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, अगर वो एक दो सवालात के अगर मैं करना चाहूँ उनसे कर सकता हूँ? जी जी। अरे सादिया साहब, ये पूछना चाहिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि 500 दुकानों का जो है वो ये मॉल था जो गुल प्लाजा है, और यहाँ पर 1200 दुकानें बना दी गई, तो उसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या SBCA जो है वो इसका जिम्मेदार नहीं है? किसी भी अगर घर बन रहा हो वहाँ पर एक फ्लोर ज्यादा डाला जा रहा हो तो SBCA का अमला फौरी तौर पर वहाँ पहुँच जाता है और उनको तोड़ने की धमकियाँ देता है। फिर क्या मामला तय होते हैं कि वो बिल्डिंग जो है वो 3 मंजिला से 7 मंजिला बन जाती है। जब यहाँ पर जो है 1200 दुकानें बन रही थी उस वक्त SBCA का अमला क्या कर रहा था, और साइन बोर्ड जब लगाया जा रहा था उस वक्त क्या कर रहा था? सादिया साहिबा, यासीन ने आपसे सवाल किया है, आप इसका जवाब देंगी?
जी, मैं बिल्कुल जवाब दूँगी। मैंने ये बात शुरू में आपके जब आपने भी मुझसे सवाल किया था कि देखें, हादसा तो बहुत बड़ा है, लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, करोड़ों बिल्कुल। का, अरबों का वहाँ माल है। जो क्योंकि 1200 दुकानें थी, वहीं गोडाउन थे, वहीं स्टॉक था लोगों का। जो भी ज़िम्मेदार होगा, क्योंकि देखें ये गुल प्लाज़ा आज तो बना नहीं है कि मैं कहूँ कि जी आज बना है, और 50 साल पुरानी इमारत है, 50 साल से ये बाजार कायम है। तो बिल्कुल एसबीसीए की इसमें बिल्कुल गफलत होगी। मैं इस बात से इनकार कर ही नहीं रही। जिन इदारों की गफलत है और जिसकी वजह से ये वाकया रूनुमा हुआ, सबसे पहले तो जो सिक्योरिटी सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उस इदारे की है जो सेल्फ डिफेंस वाले महकमा कायम है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस वक्त देखें ना, इल्जाम लगाना, सियासत करना ये वक्त नहीं है। जहां तक दुकानों का नुकसान हुआ है, सिंध हुकूमत की कंपनसेशन की एक कमेटी बनी हुई है। आप लोगों को याद होगा 2008 में शायद 10 मुहर्रम को ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी ताजरों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, और वो साइट की जितनी बाजार थे वो जल गए थे, जो भी केमिकल्स वहां यूज हुआ था ब्लास्ट के दरमियान। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें फेडरेशन के नुमाइंदे भी शामिल हैं, ये जो इन बाजारों की कमिटीज हैं उनके लोग शामिल हैं, बिजनेस का और सिंध हुकूमत के लोग शामिल हैं, मुख्तलिफ इदारों के। वो कमेटी एग्जिस्ट करती है। कराची में जब भी ताजरों के साथ कोई भी हादसा पेश आया है, हुकूमत उनके साथ खड़ी हुई है, हुकूमत उनको कंपनसेशन देगी। जो लोग इसमें शहीद हुए हैं, जिनका जो अपनी जान से चले गए हैं, उनके लिए भी कंपनसेशन का सिंध हुकूमत का एक तरीका है, वो दिया जाएगा। देखिए, फायर फाइटिंग और रेस्क्यू 1122 को मैं खिराज तहसीन पेश करूंगी। फुरखान ने इस ऑपरेशन के दरमियान अपनी जान दी है। मतलब उनको क्रिटिसाइज के जी बहुत सारे चैनल्स पे क्रिटिसाइज किया, पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको क्रिटिसाइज किया। हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। पिछले 24 घंटे से इस बिल्डिंग में उन्होंने आग बुझाने के अमल के लिए जख्मी भी हुए हैं। फुरखान शहीद हुआ है इस ऑपरेशन में। तो हमें रेस्क्यू 1122 और केएमसी के फायर फाइटर्स को मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बिल्कुल खराज तहसीन पेश करूंगी कि उन नौजवानों ने अपनी जान खतरे में डालकर रात से रेस्क्यू का अमल शुरू किया है। कूलिंग का अमल बिल्डिंग में जारी है। बिल्डिंग बिल्कुल जारी है। ऑपरेशन जो है अभी खत्म नहीं किया गया, लेकिन कूलिंग डाउन का अमल जारी है। सादिया साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हुकूमत का स्टांस हमसे शेयर किया। बिल्कुल बिलाशुबा ये जो फायर फाइटर्स हैं ये हमारे हीरोज हैं जो ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, और 33 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जो ये इसमें मसरूफ अमल है, लोगों की जानें बचाने में मसरूफ है और अपनी जानों की परवाह किए बगैर। डेफिनेटली ये तो हमारे हीरो हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदारान हैं उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ पिछले साल के अंदर ही 2600 आतिशज़दगी के वाकयात हुए हैं कराची में, और यही अपडेट्स है कि जी 90% ऐसी इमारतें जिनमें फायर सेफ्टी मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है। तो अगर अभी काम ना हुआ, एग्जैक्टली एक मलबा दूसरे पर डालता है और दूसरा मलबा तीसरे पर डालता है, ऐसे काम नहीं चलेगा। नुकसान जो हुआ है वो जानी नुकसान है, वो सबसे भारी नुकसान है। अल्लाह ताला जो उनके लवाहिकीन है उनको सब्र दे और उनको इस कड़े वक्त में जो है ना मुश्किल वक्त से निकाले। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कोई भी फील्ड हो, कोई भी मैदान हो, पाकिस्तानी अगर उस फील्ड में मौजूद हैं तो वो अपनी काबिलियत और टैलेंट बनवा ही लेते हैं। जी हाँ, आपको बताते हैं कि मेडिकल की फील्ड में पाकिस्तान के मौजूद तिब्बी माहिर और डॉक्टर मौलाना प्रोफेसर अब्दुल बासित साहब को आलमी सतह पर एक शानदार एजाज़ हासिल हुआ है। अमेरिका की जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जो दुनिया के सबसे मोतबर तहकीकी इदारों में शुमार होती है, उसकी जानिब से जारी फहरिस्त में उन्हें दुनिया के
टॉप 2 जो फीसद साइंसदान हैं उनमें उनको शामिल किया गया है, जो उनकी तहकीक और इल्मी खिदमात का आलमी एतराफ़ है। डॉक्टर साहब कराची के इंडस अस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क में डायरेक्टर डायबिटीज़ एंडोक्राइन सेंटर के ओहदे पर फाइज हैं। और तो और डॉक्टर साहब मुल्क के मायानाज दानिशगाह जामे दारुल उलूम कराची है, वहाँ फाजिल और एक सनद याफ्ता आलिम दीन भी हैं। डॉक्टर अब्दुल बासित की तहकीक ख़ास तौर पर ज़ियाबतीज़, एंडोक्राइनोलॉजी और मेटाबॉलिक अमराज के शोबों में नुमाया है। इससे कबल रवां साल अप्रैल में डॉक्टर अब्दुल बासित को एक और बैनुल-अक़वामी सतह का एजाज़ हासिल हुआ था, जब पाकिस्तान की कौमी ज़ियाबतीज़ एजुकेटर्स एसोसिएशन को इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की मुकम्मल रुकनियत हासिल हुई थी, जिसमें डॉक्टर साहब जो थे वो बतौर रुकन कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। मज़ीद डॉक्टर साहब से उनकी कामयाबी का जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सुबह खैर, आप कैसे हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करेंगे और साथ साथ आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे। दुनिया के 2% जो साइंसदानों में शमूलियत होना वाकई एक बहुत बड़ी और एजाज़ की बात है आपके साथ साथ पूरी कौम के लिए। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इससे अवाम का, कौम का और ख़ास तौर पर जो बीमार हैं उनका क्या फ़ायदा है? डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे हम दोबारा राबता हैं क्योंकि आपकी आवाज़ जो है वो हम तक नहीं आ रही थी, और जो इतना बड़ा एजाज़ डॉक्टर साहब ने हासिल किया है इस हवाले से उनसे बात करेंगे, और ख़ास तौर पर बात करेंगे कि अभी तक की उनकी जो डायबिटीज़ पर रिसर्च है और उस रिसर्च से अब आगे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि टायर 2 डायबिटीज़ जो है उसके हवाले से भी उन्होंने बताया। और ख़ास तौर पर ना आपको पता है कि कितना आम है, हाँ, किसी से करोड़ों में है पाकिस्तान की आबादी जो डायबिटीज़ के मर्ज में मुब्तला है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ, आप हमें सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा, जो मैंने आपसे सवाल किया उस हवाले से हमें बताएं। जी जी जी, तो देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो रिसर्चेस आदमी कर रहे हैं, या रिसर्चर या साइंटिस्ट, उसको ये देखा जाए कि उसकी रिसर्चेस का, साइंस का, उसकी मुल्क को, कौम को, आवाम को, मरीजों को क्या फायदा हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं इस पे बहुत अल्लाह का भी मशकूर हूँ, और जो टीम मेरे साथ, जिन लोगों ने सपोर्ट किया, कि हमने डायबिटीज़ में पिछले 28 सालों में जो काम किया, उसके अंदर जो रिसर्चेस की, उससे हमारे सामने ये बात भी आई कि डायबिटीज़ पाकिस्तान में की उसकी शरह क्या है, फिर ये कि बच्चों में, नौजवानों में किस तरह फैल रही है, और फिर फैलने के अवामिल क्या हैं, रोकने के, तदारुक के इंतजामात क्या हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि हमारी इस काम को, इस काविश को इंटरनेशनल दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया। अल्लाह का बड़ा करम है इस पे इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपको क्यों जरूरत महसूस हुई कि इस पर रिसर्च की जाए? राइट, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मैं जब 28 साल पहले पाकिस्तान आया था कि डायबिटीज बहुत फैल रही है, और डायबिटीज में यहाँ बहुत से इदारे और एसोसिएशंस काम कर रहे थे, मगर जिस चीज़ की मुझे बहुत कमी लगी वो ये कि हमारे अपना लोकल और नेशनल डेटा नहीं है। आवाम की सतह पे जो जितना काम होना चाहिए उतना नहीं है। बहुत थोड़े से 1-2 सर्वे प्रोफ शेरा ग्रुप वगैरह ने किए थे। तो मेरा जहन ये था कि क्लिनिकल डायबिटीज के साथ साथ और मरीजों को देखने के साथ साथ ऐसे भी कुछ काम किए जाएं जिससे हम पॉलिसी चेंजेस कर सकें, जिससे मरीजों के इलाज मुआवजे में हमारे मुल्क की सतह पर कैसे इलाज होने चाहिए, क्या तदारुक होने चाहिए, और फिर ऐसा भी कुछ काम हम कर जाएं कि जो हमारे जाने के बाद भी यहाँ की डायबिटीज की पॉपुलेशन, और जब तक आवाम है, जब तक मरीज हैं, जब तक उनके लिए कोई लॉन्ग टर्म काम कर जाएं, इसलिए रिसर्च करनी जरूरी थी। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी रिसर्च के हवाले से ही हम जानना चाहेंगे, ख़ास तौर पर किस नौयत की तहकीक है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए? डेफिनेटली आपने दुरुस्त फरमाया कि वक्त की अहम ज़रूरत थी इसके ऊपर रिसर्च करना। जितनी तेज़ी से एक तो आबादी में इजाफा हो रहा है, उतनी ही तेज़ी से लगता है कि जो अमराज है उसमें भी जो आवाम है वो मुब्तला हो रही है। ख़ास तौर पर अगर हम शुगर की बात करें तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर है, बच्चा हो या बड़ा हो, वो डायबिटिक पेशेंट ज़रूर आपको मिलता है हर घर में कोई ना कोई एक। तो इसके लिए बुनियादी जो रिसर्च आपने की वो भी हमें बताएं, और हमें ये बताएं कि बुनियादी स्टेप हमने क्या लेना है ताकि हम महफूज रह सके।
بالکل صحیح. تو پہلے یہ دیکھنا تھا کہ ڈائبٹیز کی شرح کیا ہے. تو ایک اسٹڈی ہم نے پورے پاکستان میں کری جس سے یہ ثابت کیا کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً کوئی 33 ملین 3 کروڑ اور 30 لاکھ لوگوں کو تقریباً ڈائبٹیز ہے, اور اتنے ہی لوگوں کو ہونے والی ہے, یعنی وہ بارڈر پہ ہے پری ڈائبٹیز. تو پہلی بات کسی بھی بیماری کے لیے ہونا چاہیے کہ کیا میگنیچیوڈ ہے اس کا. پھر اب تک ساری اسٹڈیز جو ہے وہ 20 سال سے اوپر کی عمر میں ہو رہی تھیں. تو ہم نے کچھ گوٹوں میں جا کے بلوچستان کے اندر 16 گاؤں پورے اسکرین کے دیکھنے کے لیے کہ چھوٹی عمر والوں میں کیا ہو رہا ہے, جن کو ہم ایڈولیسنٹس کہتے ہیں, ٹین ایجرز کہتے ہیں, جو قوم کا بہت بہت امپورٹنٹ حصہ ہوتے ہیں. تو پتہ ہی چلا کہ 15 سال سے 25 سال کے نوجوانوں میں بھی ڈائبٹیز اور بارڈر لائن ڈائبٹیز کی شرح بڑھ رہی ہے, اسموکنگ کی شرح بڑھ رہی ہے, موٹاپے کی شرح بڑھ رہی ہے. پھر ہم نے کہا ہم اس سے بھی نیچے جا کے دیکھتے ہیں کہ 8 سے 10 سال کے اسکول کے بچوں میں ڈائبٹیز اور موٹاپے کا کیا حال ہے. تو بڑی پریشان کن بات یہ نکلی کہ ہمارے 8 سے 10 سال کے بچوں میں سافٹ ڈرنکس کا بہت زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے اور ہیلدی لائف اسٹائل نہ ہونے کی وجہ سے, فروٹس ویجیٹیبلز نہ کھانے کی وجہ سے, ہم نے یہ لکھا منسٹری کو ریسرچ کے بعد کہ تقریباً 1 کروڑ بچے ایسے ہیں پاکستان میں جو ڈائبٹیز کے دھانے پہ کھڑے ہیں موٹاپے کی وجہ سے. پھر ہم نے کہا اس سے بھی نیچے اور چھوٹے بچوں کو جا کے دیکھتے ہیں. تو جو سمجھنے کی بات ہے کہ سندھ کے اندر اسٹڈی ہوئی, یہ ذوالفقار بھٹا صاحب کا اسٹڈی تھی کہ تقریباً گاؤں کے اندر 25 سے 30% مائیں اب بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی. اور یہ دنیا بھر میں سائنسی طور پہ ثابت ہے کہ جو ماں بچے کو ڈبے کا دودھ پلائے گی یا اپنا بریسٹ فیڈ نہیں کریں گی, یہ بچے بڑے ہو کے ڈائبٹیز سے متاثر ہو جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بڑا الارمنگ ہے, کیوں ایسا الارمنگ ہے؟ جی کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے بعد اور جی اور فکر مند ہو گئے. تو جو مائیں پریگننٹ ہوتی ہیں, ہم نے ان کی اسٹڈی کری کہ بچہ جو ماں کے پیٹ پہ بن رہا ہوتا ہے اس کے برتھ ویٹ سے یہ طے ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈائبیٹک بنے گا کہ نہیں. تو ہم نے یورپین یونین کے ساتھ اسٹڈی کری اور یہ ثابت کیا کہ ہمارے ملکوں کے اندر بچوں کا برتھ ویٹ 2.2 کلو سے لے کر 3.5 کلو تک ہونا چاہیے. اس سے چھوٹا بچہ جو ہوگا یہ بھی ڈائبٹیز سے متاثر ہوگا. اس سے بڑا 3.5 کلو سے زیادہ بچہ جو پیدا ہو رہا ہے یہ بھی آگے جا کے ڈائبٹیز سے متاثر ہوگا. تو ہیلتھی ماں اور ہیلتھی بچہ نیشن کے لیے اور ڈائبٹیز سے پریونشن کے لیے بہت سخت ضرورت ہے. تو پہلا کام تو یہ تھا کہ یہ دیکھنا کہ ایجز وائز ہم کہاں سے ڈائبٹیز کی پروگرامنگ کر رہے ہیں. تو پتہ ہی چلا کہ جب ماں پریگننٹ ہو رہی ہے اس وقت سے بچے کی ڈائبٹیز کی پروگرامنگ ہو رہی ہے. پھر اس کے حساب سے ہم نے ان کے تدارک کے انتظامات کیے. مثلاً ایک یہ کہ آپ بریسٹ فیڈنگ کو پروموٹ کریں, ایک یہ کہ آپ سوسائٹی آف اینڈ گائنی والوں کے ساتھ مل کر ہیلتھی مدر ہیلتھی بیبی کے پروگرامز کریں. ایک ہم نے رسک اسکور نکالا ہے, وہ 12 سال کی محنت سے نکلا ہے, جس سے عوام الناس آپ کے تھرو سامعین سارے 30 سیکنڈ میں یہ جان جائیں گے کہ مجھے ڈائبٹیز ہے کہ نہیں. تو یہ 3 سوال ہیں. مثلاً ایج ہے پہلا سوال, اگر 40 سے کم ایج ہے تو 0 لکھ لیں, اگر 40 سے 50 ایج ہے تو 1 لکھ لیں, 50 سے اوپر ہے تو 3 لکھ لیں. تو یہ پہلا ایک سوال ہو گیا. دوسرا یہ کہ اگر فیملی میں ڈائبٹیز نہیں تو 0 لکھ لیں, لیکن اگر امی ابو بہن بھائیوں میں سے کسی کو ڈائبٹیز ہے تو 1 لکھ لیں. یہ دوسرا سوال ہو گیا. اور تیسرا یہ کہ جو کمر کی گولائی ہوتی ہے, ویسٹ سرکمفرنس ہوتی ہے, تو مردوں میں اگر یہ 35.5 انچ سے کم ہے تو 0 لکھ لیں, اس سے زیادہ ہے تو 2 لکھ لیں, اور لیڈیز میں اگر 31.5 انچ سے کم ہے تو 0 لکھ لیں, ورنہ اس سے اوپر ہے تو 2 لکھ لیں. اب یہ 3 سوال ہیں, بہت آسان میسج ہے. اگر 4 اسکور ہے آپ کا یا 4 سے زیادہ تو یہ تو ڈائبٹیز ہے یا ہونے والی ہے. اب جا کے آپ چیک کرا لیں. تو ہم یہ ایسے ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی زبردست چیز ہے. یہ 3 سوال بڑے آسان اور ان کا جواب ہم نے دینا بھی خود ہے, اور اس کے بعد ہم رسک سے کم آگاہ ہو سکتے ہیں کہ یا تو ہے یا پھر ہونے والی ہے. اپنا ٹیسٹ ضرور کرائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میجر ریزن آپ کو کیا لگتی ہے؟ ہمارا لائف سٹائل, اس میں تبدیلی کی ہمیں ضرورت ہے؟ کہاں ہم غلطیاں اور کوتاہیاں کر رہے ہیں جو ہم اس طرف لے کر جا رہے ہیں خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی؟ اور خاص طور پر جو ایکسرسائز ہوتی ہے یا جو ورزش ہوتی ہے, کیا اس کے کوئی ٹائمنگ کا بھی فرق ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد واک کرتے ہیں بہت سارے لوگ, کھانے سے پہلے کرتے ہیں؟ درست طریقہ کیا ہے؟ یہ ذرا ہمیں کچھ چیزیں ضرور بتائیے گا.
राइट, तो जैसे मैंने कहा शुरू से सारे स्टेप्स लेने होंगे। पहली बात तो जो आपके मैटरनल चाइल्ड हेल्थ है, इस पे सरकारी गैर सरकारी एनजीओ को सबको काम करना पड़ा हो कि माँ हेल्दी हो, माँ स्मोकिंग ना करती हो, तंबाकू ना, हुक्का ना इस्तेमाल करती हो, स्ट्रेसफुल लाइफ ना हो, तो माँ हेल्दी होगी तो बेबी हेल्दी होगा। और फिर ब्रेस्ट फीड बेबी को करें और डिब्बे के दूध से बचाएं। फिर बच्चे के मोटापे के बचाने के लिए जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इनको अवॉइड करें। अब सॉफ्ट ड्रिंक्स पे हम कहते हैं सरकार टैक्स लगाए, इतना टैक्स लगाए, ये कोई जीने मरने की नहीं है बात। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स पे, फैट्स पे और सॉल्टिश प्रोडक्ट्स जो बाजार में मिल रही हैं, सिगरेट्स पे, इन पे टैक्सेस लगाएं। इन पे टैक्सेस लगा के रेवेन्यू जनरेट करें। ये रेवेन्यू जो है ये प्राइमरी केयर पे लगाएं, प्रिवेंशन पे लगाएं, लोगों की हेल्थ पे लगाएं, पार्क बनाने में लगाएं, अवेयरनेस देने में लगाएं। और जैसे फिर आपने कहा लाइफ स्टाइल चेंजेस, तो सच बात है हम लाइफ स्टाइल चेंजेस शुरू कर रहे होते हैं 20, 25, 30 के बाद, जब तक लोग पुख्ता हो जाते हैं। हमें स्कूलों के अंदर प्रोग्राम्स करने चाहिए, स्कूलों में प्ले ग्राउंड और जिम्स बनाने चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इन्वॉल्व करना चाहिए। और बाकी जैसे आपने कहा वॉक कब करें, तो बिल्कुल सही बात है, वॉक तो अर्ली मॉर्निंग होनी चाहिए या खाने से पहले होनी चाहिए। 15-20 मिनट की भी अच्छी ब्रिस्क वॉक हो जाए। अब बाज लोग जो है ये करने लगे हैं, जो कि अच्छी बात है कि जब काम पे जाते हैं तो हमने काम की जगहों पे भी जिम्स बनवाए हैं कि भाई उनके काम के घंटों के दौरान उन्हें एक्सरसाइजेस का मौका दिया जाए। जो बड़े इंडस्ट्रीज में काम करते हैं वो इंडस्ट्रीज में जाके वॉक करें, पर वॉक करनी चाहिए। गंदम, अनाज और ये पराठे शराठे आप सब जानते हैं, बिरयानी वगैरह, इनको जितना अवॉइड कर सकें। कार्ब हो अगर लिमिटेड हो, प्रोटीन डाइट ज्यादा हो, और नट्स वगैरह का इस्तेमाल, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स। डॉक्टर साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम किया जाए, प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए, और अगर आप कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा इस्तेमाल करें फिर एक्सरसाइज भी उतनी ही ज्यादा करें। डॉक्टर साहब अभी सजेस्ट कर रहे थे कि एक्सरसाइज करने से पहले आपने नहीं खाना बल्कि एक्सरसाइज करने के बाद खाना है, तो ही आप बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। और अब बात करेंगे बच्चों की मौजें खत्म होने की। पंजाब भर में मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद स्कूल अब दोबारा खुल गए हैं, छुट्टियां खत्म हो गई हैं। स्कूलों में बच्चों के जो वालिदैन हैं उनके वापसी पर उनके क्या तासुरात हैं, स्कूलों में बच्चों की हाजिरी कितनी है, इस पर हमने करनी है जी बात। में ज्वाइन कर चुके हैं हमारे नुमाइंदे यूसुफ अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि बच्चे तो जाहिर बात है नाखुश होंगे, लेकिन वालिदैन जो है उनके क्या तासुरात हैं? अच्छा, मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ कि बच्चे भी खुश हैं। अच्छा, पहली तो सबसे खुशी की बात यह है कि बच्चे भी स्कूल आने पे आज हाँ जी खुश हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं, जो ज़ायद छुट्टियाँ होती हैं, उसमें बच्चों की बोरिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि वो नानी और दादी के घर से भी आ जाते हैं वापस। तो जो छुट्टियाँ होती हैं उसका शेड्यूल इस तरह डिस्टर्ब हो जाता है कि बच्चे अकेले रह जाते हैं। ज़ाहिर है वालिदैन अपने अपने काम पे चले जाते हैं, तो घरों में बच्चे जो हैं वो बोर हो जाते हैं, कोई दोस्ती नहीं, कोई नाता नहीं। तो आज हमें जो देखने में आया, जो स्कूल खुल गए आज इजाफी मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद, तो बच्चे खुशी खुशी स्कूल आए हैं। और स्कूल की टाइमिंग भी बड़ी 8:45 का टाइम रखा गया है स्कूल के ओपनिंग का, और 1:30 पर स्कूल बंद होंगे। आज सनी डे है और सनी डे में बच्चों के चेहरे भी सनी थे, खुश थे, खुशगवार थे। और बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हमें छुट्टियां जो ख़त्म हुई हैं इस पर खुशी इस वजह से भी हुई है कि आज हम अपने दोस्तों से भी मिलेंगे, साथी से भी मिलेंगे। और वालिदैन ने जो बच्चों के लिए सोच रखा है, जो स्कूल आने की खुशी में जो उनको चीज़ें मिलती हैं, जो लंच बॉक्स अच्छे मिलते हैं और जो ब्रेक टाइम के लिए उनको पैसे मिलते हैं, उसकी खुशी ने उनको दुबाला कर दिया है। तो यूसुफ साहब, वालिदैन के तासुरात क्या थे? वालिदैन जो यहाँ छोड़ने आए हैं उनके तासुरात कैसे थे? क्योंकि उनको भी एक इजाफी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है, उन्हें छोड़ने आना पड़ता है, लेने जाना पड़ता है, तो उनके तासुरात कैसे थे? देखिए, वालिदैन ने तो हर सूरत में बच्चों को छोड़ना है, ये उनकी मजबूरी भी है और लाजमी जिम्मेदारी भी है। इस हवाले से बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जिनको बोरिंग फील हुई, सुबह सुबह उठना पड़ा, मुंह हाथ धोए बगैर बच्चों को छोड़ना पड़ा। लेकिन बहुत सारे वालिदैन ऐसे भी थे जिन्होंने खुशगवार मूड में बच्चों को छोड़ा, क्योंकि उनका ये कहना था कि बच्चों के बहाने हम भी सुबह सुबह उठ गए और फ्रेश होकर हमने बच्चों को भी छोड़ा और खुद भी फ्रेश होकर अब दफ्तर जाएंगे और अच्छे तरीके से काम करेंगे। सही है। अच्छा यूसुफ, जिस तरह से आपने भी कहा
19 तारीख को छुट्टियां हुई थी और इस बार तो छुट्टियां भी ज्यादा हो गई हैं, करीबन 1 माह ही हम लगा लें, तो क्या ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है कि ये जो छुट्टियां हैं ये एक्सटेंड ना करनी पड़े और पीक्स जो विंटर डेज हैं, सर्दी के दिन हैं, उनमें ही छुट्टियां बच्चों को दी जाए ताकि पढ़ाई का हर्ज ना हो? बड़ी अहम आपने बात की है कि जो इन्वायरमेंटल चेंज है, जो माहौलियाती आलूदगी है, उसने सारा शेड्यूल डिस्टर्ब करके रख दिया है। अब आप ये तय नहीं कर सकते आइंदा 2-4 साल तक कि किस मौसम में कितनी सर्दी होगी और किस मौसम में कितनी बारिश होगी। ये उसी वक्त अंदाज़ा लगाया जाएगा जब शेड्यूल के मुताबिक छुट्टियों का वक्त आता है, क्योंकि ये अक्सर देखने में आया है कि जब छुट्टियों का शेड्यूल जब भी तय किया गया है, उसी के दौरान या उससे थोड़ी देर पहले या उससे थोड़ी देर बाद में शदीद सर्दी या शदीद बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। इस हवाले से ये कहना कबल वक्त है कि अब छुट्टियों का शेड्यूल क्या बनेगा या क्या बनाना चाहिए, ये तो मौसम की कैफियत पे ही मुनसर करता है कि जैसा मौसम होगा उस हवाले से। क्योंकि ये एक अहम बात आपको बता दूं कि जो छुट्टियां होती हैं स्कूलों में, उसका शेड्यूल पढ़ाई के दौरानिए के मुताबिक होता है। यानी कि अगर साल में 365 दिन है तो कम से कम आपने 170 से 80 दिन पढ़ाई का दौरानिया रखना है। तो इस दौरानिए के दौरान वो ऐसा पेपरों का भी टाइमिंग होती है, फिर छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, सर्दी की छुट्टियां होती हैं, ईद की छुट्टियां होती हैं और बहुत सारी छुट्टियां होती हैं। उन सब को मलूज़े खातिर रख के खित्ते के मौसम के हिसाब से छुट्टियां दी जाती हैं। तो ये कहना कबल वक्त होगा कि आइंदा का क्या शेड्यूल बनेगा। ताहम गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है कि जब भी कोई ऐसा मौसम आ जाए जिसमें हंगामी तौर पर छुट्टियाँ बढ़ानी पड़ जाएँ, तो असातिज़ा को कहा गया है कि वो एक ज़ीरो पीरियड के तहत बच्चों के जो असबाक हैं, जो उनका सबक है, जो उनकी तैयारी है, उसको पूरा करवाएंगे ताकि उनका जो हर्ज हो जाता है इजाफी छुट्टियों की वजह से वो पूरा किया जा सके। और इस दफ़ा क्योंकि मौसम सरमा में छुट्टियां बढ़ी हैं और आइंदा 1 माह के बाद सालाना इम्तिहान शुरू हो जाएंगे हर क्लास के, तो इस हवाले से इस दफ़ा हुकूमत की तरफ से सख्ती से हदायत की गई है सादा को कि वो जो बच्चों की इजाफी छुट्टियाँ हैं उसका सिलेबस पूरा कराएं ताकि बर वक्त बच्चों के इम्तिहान की तैयारी हो सके और भरपूर अंदाज में मार्च में होने वाले इम्तिहानात में शिरकत कर सकें। बिल्कुल ठीक। यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, बच्चे कितने खुश हैं, वालिदैन कितने मायूस हैं उनको स्कूल छोड़ते हुए, और वालिदैन भी खुश हैं, पूरे दिन की घर की जिम्मेदारी होती है और लेकिन जब खुद पढ़ाना पड़ता है वो ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आप जिम्मेदारी देखिए ना कि आपको छोड़ने जाना पड़ता है, आपको लेने जाना पड़ता है, तो इस सूरत हाल का शिकार है तो बिल्कुल मायूस ना हो जाए। आपको पता है कि 2026 स्टार्ट हो चुका है, तो अच्छा सा आगाज कीजिए, खूब पढ़िए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। वेलकम बैक। एआई ने पूरी दुनिया में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी इनकलाब बर्पा कर रखा है, आप जानते ही हैं, और पाकिस्तानी टैलेंट भी एआई के इस्तेमाल से जिंदगी आसान बनाने के लिए दिन रात कोशा है। आपको बासलाहियत पाकिस्तानियों की एक और जबरदस्त एआई इजाद के बारे में बताते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बासलाहियत नौजवान तलबा के एक ग्रुप ने मुल्क का पहला एआई वकील तैयार कर लिया। जनाब, ये एआई वकील कानूनी शोबे में जिद्दत और रफ्तार की नई मिसाल कायम करेगा और बतौर लीगल असिस्टेंट काम करेगा। वकला ऐप में तफसीलात देकर सिर्फ एक क्लिक पर केस की दस्तावेजात तैयार कर सकेंगे। मसनूई जहानत के वकील मॉड्यूल के जरिए क़याम पाकिस्तान यानी 1947 से लेकर 2025 तक के मुल्की अदालती फैसलों और कवानीन की बुनियाद पर दुरुस्त और जामे कानूनी जवाबात हासिल कर सकेंगे। इस सहूलत से पुराने डेटाबेस और महीनों की रिसर्च की जरूरत खत्म हो जाएगी। अदालतों में केसेस के इल्तवा के मसाइल में भी बहुत कमी आएगी और हफ्तों का काम मिनटों में मुकम्मल होगा। माहिरीन के मुताबिक ये मकामी कवानीन पर मबनी टेक्नोलॉजी नौजवान वकला को बाइख्तियार बनाने के साथ साथ इंसाफ की फराहमी, शफाफियत और अवामी जो एतमाद है उसको मजबूत बनाने की जानिब एक अहम कदम है। इसी पर हमने करनी है बात। जनाब, आपने देखा है कि एआई हर तरफ छा चुका है और कोई फील्ड ऑफ लाइफ ऐसी नहीं है जहां पर इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन इसका इस्तेमाल बड़ी अच्छी चीज है। मोहम्मद दानिश गफ्फार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये जो इतना डिफरेंट आइडिया आया और इस पर आप लोगों ने काम किया और जिस तरीके से एआई एक वकील बनाया है या जो ऐप है वो बनाई है, इसके हवाले से जरा हमें तफसीली बताइए। जी वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू यू टू। डिजी लॉयर का आइडिया, मैं किसी और आइडिया पे काम कर रहा था, उसकी कहने की लीगल जो इश्यूज थे वो मैंने डिस्कस किया अपने फादर से, जो कि मेरे फादर भी लॉयर हैं, ही इज़ एन एडवोकेट हाई कोर्ट। तो मैं उनके पास गया, उनको मैंने बताया कि इस तरह से पेटेंट रिलेटेड मुझे कुछ लीगल नॉलेज चाहिए। तो उन्होंने मुझे अपने पार्टनर जो थे जो आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को देखते थे उनके पास भेजा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे ना मेरी डायरी जो वकीलों की होती है मैनेज करने के लिए, इस पे एक एप्लीकेशन बना कर दें। तो आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च ऑन दैट
یہاں پہ بہت زیادہ وکیلوں سے ہم ملے. پھر ہمیں پتہ لگا کہ اچھا یار ڈائری از سم تھنگ دیٹ از نائس ٹو ہیو, لیکن جو مین پین پوائنٹ وکیل حضرات فیس کرتے ہیں دیٹ از ان دا لیگل ریسرچ اینڈ ڈرافٹنگ. تو پھر ہم نے اس کے اوپر کھیلنے کے ایک کاوش اپنی شروع کی, اور وہ آہستہ 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 ڈیجی لائر گرو کرتا گیا. رائٹ. تو دانش, یہ تو ان کی جو جابز ہیں وہ کھا جائے گا اگر آپ نے ایسی کوئی صورتحال پیدا کر لی ہے ان کے لیے. وہ انہوں نے آپ سے کہا کہ ڈائری بنا دیں, آپ نے پورے کا پورا وکیل بنا دیا ہے, تو اس پر آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے وقت میں کوئی واویلا مچ سکتا ہے؟ نہیں, ہم ریپلیس تو نہیں کسی کو کرنے جا رہے. دس از اے ویری بگ مسکنسیپشن. ایک چیز جو کہ ہر بندے کو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ اے آئی ول ناٹ ریپلیس یو, بٹ دا پرسن ہو یوزز اے آئی دیٹ از گوئنگ ٹو ریپلیس. ٹھیک ہے. اچھا دانش, اس کے حوالے سے یہ بتائیں کہ جو ڈیجی لائر ہے یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اس میں اگر ایک بیسیکلی اگر ہم اسے دیکھیں تو ایک وکیل کی ہیلپ کے لیے اسے بنایا گیا ہے تاکہ وقت کی بھی بچت ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ کلیئر ہو سکیں اور شفافیت رہے, کسی قسم کا ابہام نہ رہے. تو کلیئرٹی کے لیے یہ بتائیں کہ یہ کام کیسے کرے گا, یہ ہیلپ آؤٹ کرے گا کیسے کسی لائر کو, اس کو ایکسیس کیسے کرنا ہے اور اس پر کام کیسے کرنا ہے؟ بالکل ٹھیک. ابھی میں اس کو نا آپ کو ایک ایگزامپل سے کوٹ کرتا ہوں. لیٹس سے یو ہیو اے ہاؤس ان ڈی ایچ اے سم ویئر, اور اس کو آپ نے کسی کو کرایہ پہ دیا ہوا ہے, اینڈ 6 مہینے ہو گیا اس بندے نے آپ کو کرایہ وغیرہ نہیں دیا ہے, اینڈ ناؤ یو وانٹ ٹو ایوکٹ دیم. اب آپ اپنے ڈاکومنٹس یا جو بھی دستاویزات ہیں وہ لے کے آپ ایک وکیل کے پاس جائیں گے. اب وکیل نے اس پہ 3 میجر اسٹیپس کرنے ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس نے اس ڈاکومنٹ کو پڑھنا ہوتا ہے, اس میں سے فیکٹس اینڈ فگرز دیکھنے ہیں, ہائی لائٹ کرنے ہیں, لیگل پوائنٹس جو بنتے ہیں. دین he moves on to the next step which is legal research. تو legal research میں اس نے 1947 سے 2025 تک کہ جتنے بھی لاز ہیں اور جتنے کیس لاز ہیں اس کے اندر سے دیکھنا ہے کہ میرے اس کیس کے ریلیٹڈ کون سے پرانے ایسے کیسز ہیں جو رہ چکے ہیں اور کون سے قانونی سیکشنز جو ہیں وہ اس پہ اپلائی ہوں گے یہاں پہ. اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ اس نے ڈرافٹنگ کرنی ہے اس پہ. اب ڈیجی لائر ان تینوں اسٹیپس پہ اس کی ون وے اور انادر مدد کر رہا ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ ہمارا بریف کیس جو ہم نے کریٹ کیا ڈیجی لائر کے اندر, وہاں پہ اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرتا ہے. دین ہی اینالائزز دیم تھرو RKI, وہ بھی ہم نے وہاں پہ ایک سسٹم کریٹ کیا ہے کہ وہ اس کو اینالائز کر کے سمرائز کر کے بتا دیتا ہے. پھر ہم نے 1947 سے 2025 تک کا جتنا کیس لا ہے وہ یہاں پہ ڈیجی لائر میں ہم نے اس کو انٹر کیا, اور وی آر دا موسٹ کمپریہنسو لیگل ڈیٹا بیس فار لا جرنلز. یہاں پہ پھر اس کے اوپر ہم نے ڈفرینٹ کہہ لیں کہ ایسی چیزیں ڈیولپ کی ہیں جو کہ پاکستان میں آج سے پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی, جیسے کہ کیس ٹریٹمنٹ, کہ آپ کو یہ پتہ لگ جائے جو آپ کیس پڑھ رہے ہیں یہ اسٹل ایکسیپٹیبل ہے قانونی طور پہ یا نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی اور اس پوائنٹ پہ ججمنٹ آ چکی ہے. تو یہ ڈیجی لائر نے نئی کہہ لیں کہ چیز ایجاد کی ہے. تو یہ بتائیے گا دانش, یہ وکلا کے لیے تو ہیلپ فل ہے, کوئی عام آدمی بھی, عام شخص بھی اس سے گائیڈنس لے سکتا ہے؟ کیونکہ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ اب آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو آدھے ڈاکٹر خود بنے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے تھوڑی بہت ریسرچ کی ہوتی ہے ان چیزوں کے اوپر. تو ایسا ہی کوئی صورتحال ہمیں لگ رہا ہے کہ جو مدعی بنتے ہیں, جو کیسز کرتے ہیں, ان کو بھی ہیلپ ہو سکتی ہے؟ اس میں ان کو بالکل ہیلپ ہو سکتی ہے, بٹ اگین دا تھنگ از کہ وہ کہتے ہیں جی کہ نیم حکیم خطرہ جان, تو جو کام جس کا ہے وہ اسی کو آئی گیس کر کے دینا چاہیے. اینڈ ڈیجی لائر کا جو RKI اور MyKI جو آپ کو چیزیں دیں گے, اصل میں ہم نے 2 لیگل ایسوسیٹس کریٹ کیے ہیں, تو ایک آپ کو ریسرچ کر کے دیتا ہے, ایک آپ کو ڈرافٹ کر کے دیتا ہے. اسپیشلی جو ریسرچ پارٹ ہے وی ہائی لائٹ اٹ ود اے ڈسکلیمر کہ دس از لیگل ریسرچ ناٹ لیگل ایڈوائس. اوکے. اچھا دانش, یہ بڑی ڈیفیکلٹ چیز تھی اور بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا, اس طرح سے سارا ڈیٹا جو ہے وہ اپلوڈ بھی کیا جائے اور پھر اس کے بعد اس سے ہیلپ بھی لی جائے. آپ کو کتنا ٹائم لگا اس کو کریٹ کرنے کے اندر, اور آپ کی ٹیم جو ہے اس میں کون کون ہے؟ آپ نے اکیلے یہ کام کیا یا پھر آپ کے ساتھ آپ کے جو کلیگز ہیں یا آپ کے دوست ہیں کوئی وہ بھی تھے؟ ہماری ڈیجی لائر کی فاؤنڈنگ ٹیم از 6 پیپل, جس میں میں ہوں, محمد صفی اللہ ہیں, طلحہ جلال, حماد اعجاز, امن عمران اینڈ محمد احمد. اس میں سے ہم سارے ایکچوئل میں تو انجینئرز ہیں, UET لاہور سے ہم نے گریجویٹ کیے, بٹ وی آلسو سی ڈفرنٹ اسپیکٹس آف تھنگ. جیسے ہمارے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں, اینڈ جو ہمیں ٹائم لگا ڈیٹا کلیکشن پہ اور اس کو کلین کرنے میں, اس کو ریفائن کرنے پہ, وہ ہمیں تقریباً 1 سے 1.5 سال کا ٹائم لگا. اینڈ ناؤ اپریل 2025 میں ہم نے اس کو لانچ کیا اور اب اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. کرنٹلی آئی ایم ان پشاور
for promotional purposes for DigiLoy. राइट तो यही पूछना चाह रहा था आपसे, क्योंकि डाटा तो इसका बहुत ज़्यादा होगा और उसको ऐड करने के लिए, और ख़ासकर अगर आप मैनुअली ऐड कर रहे हैं तो फिर तो शायद 1.5 साल से भी ज़्यादा टाइम लगता है आपको। बिल्कुल, इसमें हमने ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा लेवरेज किया है। अगर हम उसको फुली मैनुअल तरीकों से करते तो वो तो बहुत ज़्यादा। राइट तो अब आपका आगे क्या विजन है इसके इस्तेमाल को? जिस तरह से आपने बताया पेशावर में मौजूद हैं और इसकी प्रमोशन के लिए ही वहाँ पर हैं, क्या देख रहे हैं इसको कि इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए? डिजिलॉयर का हमारे ये कि 2026 में पाकिस्तान की जितनी हमारी मार्केट है इसको कवर किया जाए, एंड एट द एंड ऑफ 2026 हम इसको यूएई, यूएस और यूके, अभी हमारी मार्केट रिसर्च आ रही है, तो हम इसको दूसरी मार्केट्स में लेके जाएं। तो ये हमारा कहते हैं कि एक गोल है। एंड ऑन दी अदर जुडिशरी साइड ऑफ थिंग्स, हमारे पाकिस्तान के 2.8 मिलियन केसेस पेंडिंग हैं, इसमें से 2.4 डिस्ट्रिक्ट में। तो इस साल हमारा एक कहने के अज़म है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को हमने हेल्प करना है। ये जो केसेस का बैकलॉग है, उनकी जो रिसर्च है, उसमें उनको हमने सब जितना हो सके फैसिलिटेट करने, और इसके लिए हम ट्रेनिंग्स भी करने को तैयार है। बट हमें सिर्फ कहने के जुडिशरी एंड से और गवर्नमेंट एंड से लोग चाहिए जो कि हमारे साथ कोलैबोरेट करें इस पे। We are the ones who can solve it. ठीक है, तो दानिश इंडियन बस ये बताएं कि इट्स सेफ टू यूज इट ना, इसकी ट्रांसपेरेंसी पे तो कोई सवाल नहीं उठ सकता। डेफिनेटली जो डेटा है उसको उसी तरीके से ही यहाँ पर रखा गया हो और वो उसी फॉर्म में उसको हम यूज कर सकते हैं आगे, खासतौर पर जो हमारे लॉयर्स हैं। बिल्कुल, एक तो डेटा वहाँ पे रखा गया, और दूसरा जो हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन इस चीज में है वो ये है कि आपको हमारा जो AI बेस्ड इंजन है वो जब आपको आंसर करता है तो हमेशा उस चीज का लिंक देता है। आम अगर टूल्स हम देखें, ChatGPT, परप्लेक्सिटी वगैरह, तो वो एक चीज के लिए उनके अंदर फैक्टर होता है, हेलुसिनेट कर जाते हैं। बट डिजिलॉयर में जब भी आपको वो कोई जजमेंट या केस का हवाला दे रहा है तो उसका लिंक भी साथ देगा। आप सिंगल क्लिक से उस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे जा सकते हैं जहां से उसने उठा के वो बात की, तो इट सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। बिल्कुल ठीक। दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। बहुत ही अच्छा इकदाम है आपका डिजिलॉयर। मेरा ख्याल है कि अपनी नौयत का एक बहुत बड़ा संगे मील है जिसको अबूर कर लिया गया, और आप देखें अनबिलीवेबल है किस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, AI आगे चल रही है और हमारे नौजवान कदम ब कदम उनके साथ चल रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। साजिद, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जो करंट ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उसके हवाले से मैं आगाह कीजिएगा। जहां जहां आग अभी तक लगी हुई थी, क्या उसे भी बुझा लिया गया है? वालेकुम अस्सलाम। देखें, इस अफसोसनाक वाक़े को तकरीबन 36 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक अगर हम ये कहें कि मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया गया है तो ये कहते कबल वक्त होगा। ताहम जो फायर ब्रिगेड हुकाम है उनकी जानिब से ये दावा ज़रूर किया गया है कि रात गए इस गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। अब कूलिंग का अमल जारी है। कुछ वक्फे से जो है जिन दुकानों में ये आग के शोले मौजूद है वो अचानक भड़क उठते हैं, जिस पर फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से जो है वो पानी और फॉर्म का इस्तेमाल करके उस आग को बुझा दिया जाता है। अब तक इस अफसोसनाक जो वाक़या है इसमें 14 अफराद के जाँ बाग होने की तस्दीक कर दी गई है, जिनमें एक खातून भी शामिल है। गुज़श्ता रोज हमने ये देखा था कि 6 अफराद की जो है वो लाशें यहाँ से निकाल ली गई थी। 6 अफराद के जाँ बाग होने की तस्दीक कर दी गई थी। कल शाम से लेकर आज सुबह जब तक हमारी आपसे बात हो रही है तो मजीद 5 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। मजमूई तौर पर 14 अफराद जाँ बाग हो गए, लेकिन अगर हम लाशों के हवाले से बात करें तो तकरीबन 11 लाशें जो थी वो मुकम्मल निकाली गई हैं, जबकि 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनके जो है वो अब मुख्तलिफ जिस्म के आज़ा मिले हैं, जिन्हें फौरी तौर पर यहाँ से सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर उनका जो है वो DNA लेने के बाद उनकी लाशें जो है वो ईदी सर्द खादे में अमानतन रखवा दी। जो हम DNA लेने का जो अमल है वहाँ पर जो CPLC के जो सरबराह हैं, शनाख्त प्रोजेक्ट के, वो वहाँ पर मौजूद हैं। साथ साथ जो हमारी जब पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया वो मौजूद हैं, उनकी टीम मौजूद है, और DNA का अमल जो है वहाँ पर इस वक्त जो लाशें मिलती जा रही है उनका DNA का अमल मुकम्मल करके लाशें सर्द खाने मुंतकिल की जा रही हैं। अगर हम मजमूई तौर पर बात करें कि कितने लोग अब तक लापता है तो उनकी तादाद जो है वो 50 से ज़ायद है जो अब तक मिसिंग है। उनकी जो है वो तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हो, और ख़ासतौर पर जो फायर ब्रिगेड का डिपार्टमेंट अर्बन सर्च जो है वो भी यहाँ पर जो है वो लापता अफराद को तलाश करने में मसरूफ़ अमल है। जी
अच्छा साजिद, ये बताइएगा 50 साल पुरानी ये इमारत बताई जा रही है और आग लगने की सूरत में भी मजीद खस्ता हाल हो जाएगी, तो इसके इर्द गिर्द जो मजीद बिल्डिंग्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जा रहा है और यहाँ के जो इलाका मकीन है, क्या उनको जगह खाली करने का कहा गया है? देखिए बिल्कुल, इसके साथ जो एक मशहूर एक और इमारत है, वो कमर्शियल इमारत है रंपा प्लाजा, लेकिन जो फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से गुज़श्ता रोज तमाम दिन कार्रवाइयाँ की जाती रही, उनका मकसद ये था कि इस आग को जो है वो गुल प्लाजा तक ही महदूद किया जा सके, लिहाजा आग जो है वो गुल प्लाजा तक ही महदूद रही। रंपा प्लाजा की जो है सिर्फ एक दीवार को ज़रूर नुकसान पहुँचा जो बिल्कुल गुल प्लाजा से मुतसिल थी, हमने वहाँ पर दरारें पड़ते हुए देखी, वहाँ का मलबा भी गिरता हुआ देखा, लेकिन उस इमारत को इतना नुकसान नहीं हुआ है। और गुल प्लाजा के अकब में भी एक और जो है नई इमारत तामीर हुई है, उस पर भी हमने ये देखा कि फायर ब्रिगेड हुकाम ने उस आग को वहां तक फैलने नहीं दिया, सिर्फ जो आग थी वो गुल प्लाजा तक ही महदूद रही, क्योंकि चारों अतराफ से जो है वो फायर ब्रिगेड का अमला काम कर रहा था और ये कोशिश ये की जा रही थी इस आग को जो है वो गुल प्लाजा तक ही महदूद किया जाए और इसे मजीद फैलने से रोका जाए। जी साजिद, हम चाहेंगे कि आप अपने कैमरामैन से कहें कि अगर वो हमें दिखा सके आपके अकब में इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है, और आप ये भी बताइएगा कि कितनी देर में बताया जा रहा है कि कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा और फिर जो रेस्क्यूअर्स हैं, जो फायर फाइटर्स हैं, वो इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो सकेंगे। देखिए बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि वो आपको ये पूरा गुल प्लाजा का जो फ्रंट साइड का हिस्सा वो दिखाएंगे। देखेंगे इस वक्त भी दो जगह से जो है वो फायर फाइटर्स जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वक्फन जो है वो जिस जगह शोला मौजूद होता है वहाँ से अचानक आग भड़क उठती है, तो फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर मौजूद है और उसी जगह पर जो है पानी मारकर उसको बुझाया जाता है। अब क्योंकि कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है, फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक जब तक ये कूलिंग का अमल जारी रहेगा उस वक्त तक इमारत में जाना उनका कहना था कि मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है, क्योंकि कल रात जो है वो कोशिश की गई थी ताकि इमारत के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको निकाला जा सके, तो कल एक टीम ने जो है वो गुल प्लाजा के अंदर दाखिल हुई थी और उसी दाखिले की सूरत में जो है वो 5 अफराद की जो है मजीद लाशों को निकाला जा गया है। अब तो साजिद ये बताइएगा कि पानी लाने ले जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि बार बार टैंक फिल करने के लिए तो फायर ब्रिगेड को जाना पड़ेगा, एमिजना रोड तो काफी खुली रोड है। मैं आपकी आवाज सुन नहीं सका, दोबारा सवाल की। मैंने आपसे पूछा कि पानी लाने ले जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, यहाँ पर कितने फायर ब्रिगेड का कितना अमला मौजूद है, कितनी गाड़ियां मौजूद है? देखिए बिल्कुल यहाँ पे मुताबिक जो है वो फायर टेंडर्स खड़े हुए, साथ साथ जो पानी के बाउजर हैं वो भी हम यहाँ पे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वक्तन जो है वाटर बोर्ड कॉर्पोरेशन की जानिब से यहाँ पे पानी के टैंकर जो है वो मुसलसल भेजे जा रहे हैं, पानी की कमी तो नहीं है यहाँ पे फिलहाल, और ये बिल्कुल क्योंकि एमिजना रोड है आपने, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड जरूर हुआ है क्योंकि यहाँ पे ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट का जो है वो मनसूबा जेरे तामीर है, जहाँ इस वक्त हम भी खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खुदाई हुई भी है और तमाम जो है यहाँ पर तामीराती काम भी चल रहा है, लेकिन इतना कोई जो है परेशानी का बाइस नहीं बन रहा, रास्ता मौजूद है और फायर टेंडर्स भी आराम से आ रहे हैं और साथ साथ जो वाटर टैंकर है, बाउजर है, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो पानी की कमी का तो यहाँ पे कोई परेशानी का सामना नहीं है, पेश नहीं आ रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद, हम आपसे मजीद भी तफसीलात लेते रहेंगे आगे चलकर। अभी एक्सप्रेसो से हमें दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।